So Jai Baba, everybody. Welcome to our Bombay Center's Baba Full Thursday program. Sam Uncle, can you hear us? Okay, let us begin with Baba prayer. अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तो हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Sam Uncle, can you hear us? So Sam Uncle has a little technical issue, so we'll proceed with our program. First and foremost, we would like to invite Meher Baba to come and take over this program the way he wants it to be conducted. Jai Meher Baba. Good evening, everybody. Today we have two people who are our guest speakers today. One is Shikha from Nagpur, and second speaker is Meher Krupaji Palve from Thane, and she will be joining us a little later by 6:15. So we can start with Shikha sharing. So Shikha is a fashion designer by profession, and she resides in Nagpur. I think currently she's in Hyderabad, and Shikha is a very sweet person. I know her from the Sevas days, and the rest I think Shikha will talk about herself. So Shikha, please, you can start sharing experience. अवतार मेहर बाबा की जय। Well, my spiritual journey started way back. I think as a kid, I participated in Havan because my great grandfather is the founder of Arya Samaj. So I have been seeing a lot of rituals, mantras, and participation in the process of knowing the reality of self, that is spirituality. And then there was a phase where my brother was born on Shivratri, and my parents named him Shiv, and we got into our Guruji's fold. And that's where I got more close in terms of understanding. A lot of questions came in my mind, and my whole journey towards knowing more about the self and the God started with the Guruji of Gurgaon. And over the years, my faith grew stronger and stronger. And then, of course, there were instances where I did not obey him and faced the consequences. And there was a time where a lot of challenges came in my life, and to a point of time where I was being a very sensitive person, I was not really able to handle those situations, and felt my soul sort of felt helpless, and I had started questioning what my purpose in life is, and what is the whole reason of my existence. All these questions out of my curiosity kept coming in, and then I came to know about Meher Baba through my family, that I got married in a Baba lover family, and the first time I went to Meherabad was way back in 2006 when I got married. But at that point of time, I did not really connect very strongly as such.
But yes, over a period of time, the phase where there were many overwhelming challenges in life, that was a phase where one day I was just sitting by myself, and I heard about my co-sister-in-law talking about Sehwas. And during this, I think it was around April in 2016, where I just logged on and suddenly just applied for the Sehwas. And without really knowing the details, I just applied for it. And then once I got selected, I told my family about it, and they were really surprised. And the whole journey of knowing more about Meher Baba started with the first Sehwas that I attended. That was in 2016 in Meherabad. And the theme of that Sehwas, I remember very clearly. It was called New Life. And the one quote which I resonated with instantly when I entered Meherabad was real happiness lies in making others happy. So the journey truly actually began with Baba, with Meher Baba in 2016. That was my first Sehwas. And I was kind of a little lost that first Sehwas, not able to understand a lot of things. Why is everybody saying, like, suddenly I got fever, and then everybody was like, no, it is Baba's wish. Everything is as per Baba's will. And I suddenly saw so much of faith and so much of surrenderance, everybody amongst everyone, which was totally missing in me. But of course, everything happens with time. So in 2016, the journey, like I said, the first Sehwas I was a little lost, but then the vibrations of that Sehwas were so strong, so magnetic, and so healing. It was like I went with a complete broken heart, and something magical happened there. Like Baba applied some kind of a balm to my heart, and my heart aches were all at ease. When I came back, I was in a different space altogether, and I was really looking forward to going for the next Sehwas already. And then the next Sehwas happened, which was 2017, and the theme of the Sehwas was taking Baba's name. And I think that was the power of Meher Baba's name. I think when we sat and did one of the sessions, I remember very clearly, where we were to repeat the name of Baba. That was a magical experience, because I never thought just repeating Baba's name can do so much of wonders to our soul, our mind, our heart, and it can just, I mean, I have no words to explain what the experience was about the Baba Jap. But I can say is the biggest learning and the takeaway from that Sehwas was repeating his name all along, all the time, whether it is Baba's name or any other God that you believe in. I think taking taking the name of Baba or God throughout the day, throughout your daily course of life, is like you have made Baba as your companion, and Baba is with you at all times. So then all your challenges, everything automatically eases off. And then came the next Sehwas, and every time I would attend these Sehwas, the most exciting part was receiving these Baba messages. These are my favorite. I can read out a few. Keep me with you always. That was a message for me by Meher Baba. He who seeks my pleasure will find the divine treasure.
Anytime your thoughts turn to me, I am with you. And this is one of my favorite. When you leave all to me, I dare not neglect you. So I think Baba made it very, very simple. I think I had so many complexities in my mind before I came to Meherabad, how to connect with God and what mantra jap to do or how to meditate, how to connect. There was a whole lot of a confusion because I had already attended so many different in basically for a seeker definitely explores, and I explored those various other uh, meditation techniques and mantra jap techniques so that I can get more closer to God. But when I came to Meherabad, I realized that Baba has made it so simple. All we need to do is just love him, and the amount of love he showers back is unbelievable. So I think I have a few magical experiences that I can share. I call it magical because I have felt Baba's love being showered on to me in the form of answers, in the form of the prayers being answered. So I think I'll start in the reverse order. The very recent incident that happened was in just before the lockdown. This was in 2020. So 2020, I had missed the Amar Tithi, and I was just remembering Baba and saying that Baba, I missed Amar Tithi this time, but I really wish to attend your birthday and the Dhuni, which I've never attended before. And suddenly, after 2 days, I get a call and from Pune, and my meeting gets fixed in Pune for some work. And I was like, wow, this is a call for work and I have to go. And I don't know how everything just fell into place. I booked the tickets and I even booked the cab from Pune to Meherabad. And I reached on the 12th of Feb for the Dhuni. And that was the first Dhuni I attended. And during the Dhuni preparation, during the Dhuni time, I saw the preparation taking place for Baba's birthday, the play that they do every year during Baba's birthday. And then a thought came, okay, Baba, I wish I can attend your birthday. And there you go. After a week or so, I was so happy that again, I got a call from Pune, and again, things just fell all into place. And I got the opportunity to attend Baba's birthday. And these two instances were the times where I was already facing a lot of challenges at work. And during that phase, I think desperate prayers give desperate answers. But I think patience and having that faith and just surrendering, I think that was unconsciously, I just surrendered it in Baba's hands. There was a very important decision that had to be taken at that point of time about me and my husband moving out into a different house from the joint family. And I was not very comfortable and sure whether we were taking the right decision. So both the times that I visited Meherabad, I desperately prayed because I think it was Baba knew what is best for us more than what we know. And there you go. I just left it completely wholeheartedly onto Baba. And with that surrenderance and faith, I realized that just the next month in March 25th, we were supposed to shift into that new house. And on just one day before, on the 24th, Modi ji comes on the TV and says it's a lockdown. And I'm like, there you go. Now, this is a signal Baba has given us that no, we're not supposed to shift out at this point of time. He has some other plans for us. And at that point of time, my husband initially did not agree. And I'm like, no, this is Baba's will.
And there we go, we got our answers. And eventually, the COVID situation, everybody knows, everybody's gone through their own challenges, phase of challenges during these COVID times, difficult times. So did we go through. There was, I mean, very consciously, I told my husband that, look, we need to stay with the family and we're not moving out anywhere. It's a pandemic. And I'm really scared to go out and stay separately, independently at this point of time. I don't think it's the right time for us to move. And Baba has also, you know, given us the signal very clearly. And I'm glad that we went with the flow and decided not to move out. And eventually, we, after a couple of months, my in-laws got COVID positive, and then my husband realized that yes, we were around to help, and then the whole shift happened. Uh, the way things earlier were, falling into place. So this was the one incident where, which very, very recent incident where I totally believe that Baba has a plan for each one of us, and he knows what is best for us. And when we wholeheartedly just surrender everything to his will, I think he just takes over so beautifully. And all we need to do is just go with the flow. And that's something which has happened not once, many times. So I'm sure a lot of Baba lovers out there agree with this, and must have definitely experienced something similar. In my experience, in fact, the recent Sevas was also about surrenderance, and I could totally relate to it because of this incident that happened. And during the pandemic, also, there were a lot of challenges related to work, business. I think Baba gives us the courage, I think all the courage that is required for us to face these challenges. Uh, I think it becomes more ease. So I have a couple of quotes from the recent Sevas of Surrenderance, because this is one of my favorite. So Baba says, if we endure our lot with patience and contentment, accepting it as his will, we are loving God. So I think that's very, very beautiful. And another one is when I think now the third wave has come in. So again, this is very relevant. When Baba says, I want you to remain undisturbed and unshaken by the force of life's currents, for whatever the circumstances, they too will be of my own creation. And Baba also says, all those who surrender themselves in love to me will see and adore and realize the reality behind my form. So the two takeaways that you can say, one is wholehearted surrenderance that comes with true love, and second is resigning to Baba's will, and of course loving him, taking his name at all times. I think that is the most important thing, because the more you're taking his name, the more you're loving him, and the more you're getting closer to him. I think that's what I have experienced. Even our Guruji used to say the same thing, utte, bette, sote, jagte. Har saas mein, har breath, every work, every deed that you do, just uh, surrender it to God, do it for him. And even the Bhagavad Gita says the same thing. And I have a couple of more
Repeat my name constantly and awaken me in your heart so that you become awake for all time. Meher Baba. These are some of my favorite quotes from Surrenderance. And of course, don't worry, be happy. There was one theme on don't worry, be happy. And I think this during this pandemic time, we should all hold on to this statement, don't worry, be happy. Even if you, right now, my mom was tested COVID positive yesterday. So of course, we got a little paranoid. But then eventually, when I prayed to Baba this morning, I see Baba doing this. And then I'm like, okay, he's saying, don't worry, be happy, or everything will be great. Kind of had a vision of him. So I think staying in silence, being with him really helps. In our life, I think daily life of hustle, bustle, daily routine, we somewhere forget to connect with our own self. We need to cut away from, we need to find that me time for ourselves. Maybe you get up early in the morning or maybe in sometime in the evening, whatever suits you, but we need to sort of cut away from the world for at least 30 minutes or maybe more, the more the merrier. And only then can we really connect with the self which is inside and the Baba who's sitting right here inside of us. And he reveals such magical insights about things that you're seeking for. And I think that is the most beautiful moment, sitting silently in his company and feeling his presence, his love, even while you're sitting at home. And of course, when you visit the center or Mehrabad, the vibrations become more stronger. In fact, just 2 days back, on Sunday, actually, a couple of days back, on Sunday only, I visited the Meher Baba Center in Hyderabad. And Janice calls me and says, from 2 days, I've been thinking about you. Your name has been flashing in my mind. I'm like, okay, that's Baba. I think it's his will that I come here today and share my experiences with all of you. He's chosen me, and in spite of what's circumstances that are currently going on at my place, I'm also quarantined. I hope I'm not tested positive in the next 2 days. But if I do, then I resign to Baba's will. And but yes, one of the two most beautiful prayers. I mean, one of is of course the prayer of repentance is one of my favorite prayers. I think repeatedly saying that prayer does magical wonders to us. And what I've realized is whether it is in the teens or as we grow up, it is the main problem lies in the struggle for fulfilling our needs. Maybe our wants are not fulfilled, but then we are somewhere running behind our needs. And need for love, somebody's running behind the need for love. Somebody's running behind the need for money, food, existence, livelihood, whatever it may be. Especially when it comes to the need for love and there is a vacuum in your heart and you feel the emptiness inside of you. There are teenagers whom I see get drifted away in that loneliness in search of a girlfriend, boyfriend, or maybe they just find a wrong path. That's very common these days amongst the youngsters, the teenagers. But little do they realize that what they're trying to seek outside is actually right here inside. I think it has taken years for me to understand that. But I really hope and wish that every teenager who's young should know this, should be able to connect with themselves and with the God inside them, with Baba, because Baba truly fills up that vacuum with so much love inside of you that there is no lack, there is no need as such left in you. So it is, I think it's
there's so much he fills inside of your heart that you are, instead of seeking for that love outside, you are actually a powerhouse of love who's ready to give that love away to the world, vibrate. There's so much of vibration uh, within you. There's so much of love which you can just give away. And that is the most beautiful gift one can get for themselves once they come into Baba's fold. And what else can I say about Baba? Yes, like I said, the prayer of repentance. We all make mistakes repeatedly, and forgiving ourselves is very difficult at times. But I think the prayer of repentance is so beautiful that it can help anybody uh, get back on their path and become more peaceful and more be at ease with themselves. Only when they're at ease and in love with themselves can they actually love others. I'm also getting reminded of one more thing which I like to share. Baba also said that no amount of meditation uh, is going to get you anywhere. I mean, it's more helping others is more powerful than just meditating. Yeah, something like that. But the essence is that no amount of meditation can actually do what helping others can do. Yes, this is the right term. Thank you, Baba, for reminding me. So, yes, real happiness lies in making others happy, and helping others is the key. So each one of us should consciously see wherever there is help required. We should definitely extend our hand out and help whoever we can help, especially during these pandemic, during this times, during these difficult times, challenging times. God has actually given us an opportunity to us, and we should utilize this opportunity to the optimum in helping others in whatever way you can. For example, I'm a fashion designer, and in 2020, when the lockdown happened, I asked myself that, okay, Baba, what is it that you want me to do? And what is it that I can do during this pandemic to help the society? And then I got this answer that yes, I also did some research, and then I discovered that the designers world over are actually making masks to help people, and it's like saving. So I started this initiative called Saving Lives to Saving Livelihoods. The saving lives is of the society, the people in the friends, family, society, everybody, the whole community requires good quality masks to protect themselves. And I also got an answer that yes, all these tailors who are suddenly out of business, out of work, they don't have, how will they are daily wage tailors, how will they survive? And so I started giving them, the whole task of making masks. So it was, I think, exactly 25th of March 2020, the lockdown was announced, and 1st of April, I was on the streets, putting all the fabric in my car and going to these tailors' houses and giving them fabric to make masks. I took the permission from the district collector after a couple of days, and he was very happy to extend uh, us the permission. So we started manufacturing these masks, and I think that was a time where I started feeling that fulfillment that yes, it is not just about business, but about doing helping others during this time, pandemic time. I think that really touched my heart, and I realized that seriously, there's no amount of meditation or puja part, mantra jap, none of this can do what helping others can do. And I think the inspiration comes from my mother, who has uh, been a part of this charitable club and always, very actively trying to help the poor and the needy. So I think it can really create a huge shift
in our hearts. It really expands our heart. And I think Baba really, eventually from making masks, then I found a new purpose of making PP kits to help the COVID warriors, protect the safety of the COVID warriors who were actually doing a lot of life-saving work. So that's how I think this whole journey of pandemic, I was able to survive. I may have not made any profits, but then that was not even the motive. Survival was the motive, survival of the livelihoods, and also survival of all the entire team that we had. And I think this whole 2 years of pandemic was very, very challenging. And I have seen that Baba literally brings you to the edge, and when you're just about to fall, he's there to just pick you up and lift you up and get you back in place. I'm sure a lot of us have experienced that. At least I have experienced that when I was literally at the edge. I'm like, but he never gives up on us. So why should we not wholeheartedly put our faith in him? So yeah, that's about it. I guess there's so much more to say, but I think I've pretty much shared my heart out. So Janice, are you there? Yes, I'm here. That was really Thank you, Shikha. sharing. Sam uncle, over to you. Thank you, Shikha. Thanks a lot. Thank you so much for giving me this opportunity. I hope. Thank Baba for that. Has Mayor Krupa Palve joined in? Not yet until by 6:15. So we can take questions if anybody has for Shikha. If anybody has questions, otherwise I have some. Sorry, I'm not able to hear you. I have an announcement to be made about the Glow magazine. Has anyone got any question for Shikha? Yeah, Jimmy, Sam. Go ahead, Jimmy. Yeah, Shikha, this is Jimmy uncle. You made some passing reference about your husband, but tell us, in the scheme of things of Meher Baba and your life with Meher Baba, how does your husband fit in? Only if you want to. Sorry, your voice is breaking. I'm not able to hear you very clearly. Yeah, it's okay. I'll repeat. What I said was, in the scheme of things between you and Meher Baba, where does your husband fit in? Yes. Yes, very interesting. Your Baba lover. Yeah. Yes. In fact, I'm married in a Baba lover family. Oh, wow. But my mother, so I was not born in a Baba lover family. I was married in a Baba lover family. And I got into the fold of Baba through my mother-in-law. But somewhere my husband was not exactly a Baba lover, honestly, for a long time. And somehow, I think first Baba got me into his fold. And then it was during this pandemic time where he also encountered a lot of issues. I think when my in-laws were admitted to the hospital and everything, he just lost his cool and he was very, very upset. And I think during that time, I gave him the Baba prayer book, and we started reading the prayers every day while they were admitted in the hospital. And I think after that, a huge shift happened. So I think there's Baba knows his ways of getting our family members into the fold. Although I had tried earlier and I had told him, let's go to Meherabad. He of course, as a family, we visited to Meherabad, but being just visiting and doing the darshan and going back is different from getting totally connected with him and loving him day in and day out. So I think it happened with me first, and then slowly that I guess Baba love started somewhere,
it's infectious. It started affecting him and my daughter, and I had always wished to take them to Meherabad with me, which never happened for so many years. I think 2016 I started my Sehwaz journey, and until 2021 November, very recently, finally, my wish came true, where I took my husband and my daughter and we did the darshan at Meherabad. So I think it happens when Baba wills, but constantly I would keep sending him Baba messages, which would somewhere connect to his heart and give him the answers. And that's how he also started, getting connected. So it's recent. I think it's a long journey. I hope I've been clear enough. Thanks, Shika. Am I audible? Yes, yes. Yeah. So your husband, Jai Meher Baba. so your husband would let you go on Savas for 7 days at a time for last 3, 4, 5, whatever number of years you may have gone for Savas. So he let you go for 7 days without any issues, daughter being left with your husband, your in-laws. He was okay with that? Yeah. Yes, in fact, initially it was not like it came as a surprise to my family that, oh, how come you suddenly signed up for Sehwaz for 7 days? And I didn't know how would I get the permission. But then I think Baba did the magic, where I've always been a very, I would say, shy person. I didn't even know how do I go and tell them and get the permission. That and most importantly, I never left my daughter behind ever for 7 days. So more than my daughter, I think my heart was pounding up and down. I've never left her. She was, I think, 6, 7 year old. So I've never left her beyond 2 days. And leaving her behind for 7 days and going was actually a much more difficult task for me than for either of them. And but they were pretty perplexed and confused at what's going on. Why 7 days Sehwaz, and that too at what age? I was not 18, 19 or 30 plus. And I convinced them by telling them that, look, this eligibility, I will lose out on the eligibility if I don't attend now. So just let me go. And somehow the first Sehwaz was like half-heartedly, everybody said, okay, now she's, hard bent upon, so let her just go. And then the year after that, I think nobody asked, because I was like, I'm going. And I never had to take permission. I just had to tell them. I just had to tell Baba that now you take over. I'm just going to apply. And if you think I should come, then you find a way out. And I think Baba every time very nicely just, got me into his company. And everything just fell into place on its own. I really didn't have to, work hard on it later. Only the first time round was difficult. In fact, the difficult part was after going there, I think I was the one who was crying because I was missing my daughter so much. But then eventually, like I said, when you go to Baba with a broken heart, he just does some magic and heals you, and you come back all peaceful, with full love. Any more questions, anybody else? Any more questions? Sam, just give me 1 minute with Shika. Yeah, sure. Go ahead. Shika, with Baba, there is never a red carpet. The more you struggle to be with him, the greater the inner pleasure. That's it. That's all I have to say. Okay, Sam, yours. Sorry, I got disconnected, I guess. I'm No, back. what I said was, Shika, that Yes. with Baba, there is nothing like a red carpet. You just don't walk into Meherabad, Meherazad, Savas, etc., etc.
It's the struggle that makes you worthy of his darshan. Yes. That's what I meant. Very, very true. That was very Internally, at the end of the day, internally, it makes you kind of accomplished. Internally, you feel accomplished. And he welcomes you after a struggle. very true. Very That's true. what I meant. Yeah, I think 10 years after my marriage, I think I got married in 2006. So from 2006, I think immediately after my marriage, the first thing we did was go and take darshan of Baba. But 10 years, I struggled in my life in so many aspects, but I never had the connect, or I think I didn't even get into his fold. 10 years. It is after 2016 I got connected. So very rightly you said that yes, it is the struggle, and only after that you get to be in Baba's company and love and Sehwaz. Any other questions, folks? Any more questions for Shikha? Okay. Unfortunately, I don't have a very good connection today, but I'd like to talk a little bit about this beautiful magazine called The Glow. Can you all see this magazine on your screen? This Glow magazine has been going on since donkey's years. And it's one of the nicest and the most informative piece of Baba's life and messages and etc. And this time, fortunately, it is focused on Eera Jasawala's diaries on Meher Baba. And the first article is so beautiful that I would like to take a few minutes, if you all don't mind, to read it out. It's called How the Mandli Hall Was Built. I'm sure most of us have visited the Mandli Hall, but it is a different story to know how it was built. So very briefly, I'll just go through it. Eera Jasawala says, Elizabeth Patterson brought a car for Meher Baba. Baba was not using cars then, but his being very considerate and ever-loving decided to use it as Elizabeth had given it with all her love to Baba. So they decided to go to Belgaum. And Eera was with Baba. Elizabeth drove the car. Eera was accompanying Baba with some women Mandli. It was a very comfortable car. Baba liked it, but somehow comfort never suited Baba. It made him very uncomfortable. This is very important. At that time, Baba was preparing for the new life, and so he told Sarosh Irani to sell off these cars. And then he went away in new life, and the garage was left empty. So when Baba went away in the new life, someone gifted a filly to Baba, and Baba liked her and named her Shiva. Baba had sent word that he was going to send the filly to Mehrazad. So that's how we had to create this room, quickly built temporary walls with mud. Sorry, no mortar or cement. It's a hollow temporary wall with no windows or doors, just the structure. Sorry, the walls were very low. Anyway, to cut the long story short, this horse Shiva was given away, and then this place was, the so-called stable was lying vacant,
And one day Baba called him. He sat in a corner. There were no chairs or anything. There was a lot of hay and a soap box, a crate, where the groom used to massage Shiva's body. Baba sat on that and we sat on the floor. And Baba said, "Get me the correspondence, let us work from here." We thought it was his fancy for the first day, but Baba did the same thing the second day, the third day, and that's how the place got cleared and they started coming here. It came to be known as the Mandli Hall. Baba wanted us to put a door, but he did not want any windows, as he did not want any disturbance. This was another very peculiar habit of Meher Baba. We raised the roof because it was very suffocating. Baba wouldn't permit us to do anything else, even paint the walls. He would say, this is quite interesting, "Paint? What a stink it is. Don't do that. Why are you in such a haste? There are several hundred years to do it. Why now?" Can you imagine? Whenever Baba would go on must tours, Kaka Baria, who was the keeper, would ask Padri or Adi or Sarosh to get some old window frames and fix them quickly before Baba came back. And that's how this place has a peculiar architecture. There are different types and sizes of windows. Some are up and some are down. So the garage became a stable and then it became a Mandli Hall. A chair was put in place of the soap box, and Baba would sit on the chair and we would spread gunny sacks and sit on the floor. The gunny sacks were full of seeds, so they created termites. So they used cow dung to clear up that area. Fresh cow dung is used because the cow dung and the urine are great disinfectants. After Baba passed away, all these cushions came in. Baba used to come here every day, see people, sit in seclusion, go through the correspondence, hear reports from all over the world, send out messages and cables. All that was done from here. This was his office. There's a floor underneath this flooring, which came at a later stage after Baba had met with an accident. Baba had a hip joint busted from the car accident, and Dr. Kenmore, who was totally blind, came 13 times all by himself to be with Baba. On his first visit, he was led here. He felt his way and he said, "What's the matter here? What sort of flooring is this?" He was told that there was no flooring. What? In the court of God, man, the Lord, there is no flooring? What are you all doing here? He said, a bit shocked. Baba was sitting there and I said, "You please tell Baba." This went on. Dr. Kenmore was troubled because of the flooring, so Baba said that it should be done. And that was the only thing he had wished to be done, a stone flooring. When the stone flooring came, it was hard, not soft for our seats. In winter, it would be cold. In summer, it would be warm. So Dr. Goher again gave us some gunny sacks and made cushions with lots of tape around them. That's how we used to sit here, and Baba would be there facing us. Then Easterners and Westerners started coming. The Mandli Hall was given a facelift. Pictures were put. There was a huge crack on the wall. It was covered, but it's still hollow. This is interesting. If one were to lean against it hard or give it a tight push, the wall would collapse. Airaj ends by saying, "It's still standing with the support of your love." Jai Meher Baba. So this is how the Mandli Hall ka story is all about.
Now Some- I would some like one to call minute, upon. Some 1 minute, Jimmy here. Okay. One day I would like to tell the full story of the Mandli Hall at Mehrazad. It's extremely interesting, in detail. One day. Okay, sure, Jimmy. Surely. Okay. Now I would like to call upon Mayor Krupa Palve. Can you hear me, Mayor Krupa? जी 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 जय बाबा Jai Baba. जय बाबा लविंग जय बाबा टू ऑल अवतार मेहर बाबा की जय थैंक यू बॉम्बे सेंटर थैंक यू मिस्टर सैम एंड जेनिस नहीं जी, थैंक यू हमको मत बोलिए। थैंक यू बाबा हाँ फॉर बस गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कोई बोल दिया बस हो गया, आगे कुछ हम लोग का नाम लेने की जरूरत नहीं है जी। गो अहेड। जी सो ये सेशन स्पेसिफिकली बॉम्बे सेंटर डेडिकेट किया है, अपने अनुभव लोग यहाँ पर शेयर करते हैं। एक्चुअली जो भी हमारे बारे में भला बुरा होता है वो सब उसकी देन है। वो तो हरदम हर कदम हर सांस हमारे साथ में है। जो कोई आपको प्रेम देता है, अपनापन देता है, आस्था देता है, वो बाबा ही तो होते हैं उसमें जो आपको वो देते हैं। जो कोई आपसे दुश्मनी करता है, तकलीफ देता है, मत्सर करता है, कोई कष्ट आपको देता है, उसमें भी तो बाबा ही होते हैं। तो क्यों ना हम सोचे कि ये कष्ट भी बाबा ही दे रहे हैं और उसको हंस के हम झेले, क्योंकि उनका भी उसके पीछे हमारे संस्कार दूर करने का ही उद्देश्य होगा। ये हर कदम ये प्रियतम प्रभु अपने साथ होते हैं, हर कदम। ये हम ही है जो उनको दखल अंदाज करते हैं, हम उनको महसूस नहीं करते, हम एहसास नहीं करते। जिंदगी की हर सांस में इतने सारे अनगिनत अनुभव होते हैं, हर एक को होते हैं। या तो हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं, या विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, या उसको हम अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं, उसको महसूस नहीं करते हैं। ये जो सेशन डेडिकेट किया है बाबा के अनुभवों के लिए, तो मजा मेहर की बातों में, ये मजा मेहर के साथ में मजा मेहर की बातों में, क्योंकि ये सब अनुभव बोलना या सुनना एक बार वापस उनके सहवास का आनंद दे जाता है। उनकी उपस्थिति में ये हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे घटना हुई होगी, ये भी उसका एक महत्व है। और यदि कोई इसको चमत्कार बोलो या कोई मिरेकल हो गया ऐसा कुछ बताते हैं, तो उसके बारे में भी बाबा ने डिस्कोर्सेस में क्लियर कर दिया है कि जो भी आपको अनुभव आते हैं या चमत्कार जिसको आप कहते हैं वो आपके साथ में घटते हैं, उसको दुर्लक्षित भी नहीं करना चाहिए, उसको ज्यादा महत्व भी नहीं देना चाहिए, ज्यादा अहमियत देना नहीं चाहिए, इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, पर उसको दुर्लक्ष्य भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो अनुभव या आपको एक्सपीरियंस आते हैं, घटता है, घटना घटती है, जो भी होता है, उसका एक आध्यात्मिक महत्व है। और वो अनुभव के जरिए वो आपको आध्यात्मिक पथ पर और आगे लेना चाहते हैं। या आध्यात्मिक पथ पर कभी ऐसा भी होता है कि आगे जैसा बच्चों को एक टॉफी दी जाती है, तो लालच में वो आपका काम, आपका कहना सुनता है, स्कूल जाता है। वैसे कभी कभी आध्यात्मिक पथ पर भी ये चमत्कार के जरिए, अनुभव के जरिए टॉफी दी जाती है, ताकि वो जो पथिक है आगे बढ़े। तो कुछ ऐसे भी अनुभव हर एक को बाबा देते हैं। कभी कभी उसकी गिनती करना मुश्किल हो जाता है। जब ऐसा कोई मौका आता है तो उसके बारे में फिर सोचने लगते हैं, रिव्यू करने लगते हैं।
खैर, ये जड़ देह जो आपके सामने बैठा है उसका नाम है मेहर कृपा। और मैं बता दूं कि ये नाम भी बाबा की देन है, कैसे वो आगे देखेंगे। और इस जड़ देह को मेहर प्रभु के चरण कमलों में 1962 में रख दिया गया था। और उस समय में वो प्रभु ने जो भी लीला की है, ऐसे आशीर्वचन उन्होंने दिए कि लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ये सब पता ही नहीं था, इस आत्मा को पता ही नहीं है। ये सब उनकी इतनी बड़ी देन है, गिफ्ट है। और 1962 के बाद में 1969 तक 69 तक जब बाबा सख्त एकांतवास में रहते थे और जब भी किसी को दर्शन मुमकिन नहीं होता था, इतना सरल नहीं था, उस समय में उनकी असीम दया से करीब करीब हर साल मुझे दर्शन प्राप्त हुआ बाबा का, 62 से लेके 1962 से लेके 1969 तक। और जो हॉल की बातें अभी चल रही थी, मंडली हॉल, वहां का जो बाबा का दर्शन मैंने लिया, वो मुझे बहुत अच्छे से मुझे वो दर्शन याद है। 1968 का होगा। और पिताजी कहते हैं दैट वाज द लास्ट दर्शन बाबा के, उसके बाद में दर्शन नहीं हुआ। तो हो सकता है वो अमृतधारा की शादी हो, उस शादी में भी हम लोग सब फैमिली हमारी मौजूद थी। और ये जो 68 का था, ये भी बहुत गिने चुने लोग थे। और चूंकि ये हॉल की बात छिड़ी तो ये मेरे मुख से बाबा कहलवा रहे हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। 1969 में 1968 में ये जो मंडली हॉल है, महराजाद का हॉल है, वहाँ का जो है, तो मुझे जो जैसा याद है वो इतना ही मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं तो छोटी बच्ची थी। लेकिन मुझे मेरे फ्रॉक का कलर तक अब तक याद है। और सब लोग खड़े थे, जहाँ से जितना मुझे याद है, इसके पहले भी होगा मीटिंग का, वो मुझे नहीं मालूम, याद नहीं है। तो सब लोग खड़े थे और मेरे पिताजी मेरे बगल में खड़े थे। उनके हाथ में शायद मेरी ज्योति होगी, मेरे से छोटी बहन। और मैं पिताजी का शर्ट खींच कर उनको पूछ रही थी कि हम लोग यहाँ सब किस लिए खड़े हैं। देखो, भगवान के सामने खड़े होकर ये अनजान जीवात्मा पूछ रहा है पिताजी से कि हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। तो पिताजी ने एकदम ऐसा किया और मैं चुप हो गई। लेकिन सभी लोग खड़े थे, तो आगे क्या चल रहा है मुझे देखने की उत्सुकता थी। मैं नीचे खड़ी थी, इतनी छोटी बच्ची, 7-8 साल की, मुझे कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा था क्या चल रहा है, और मुझे बड़े देखने की इच्छा थी। और थोड़ी देर में जैसे वहां का जो भी है मीटिंग खत्म हो गया, शायद पहले से शुरू हो गया होगा, गिने चुने लोग थे। हम लोग जानते हो कि मैं मंडली हॉल में ज्यादा लोग कितना बैठते हैं। तो और जैसे बाबा को 3-4 लोग सहारा दे करके वहां से पीछे की तरफ, बाबा की रूम की तरफ पीछे का दरवाजा है, हम सब जानते हैं कि पीछे से बाबा की घर के तरफ जाने के लिए है। तो वहां से बाबा को उनकी रूम तक लेके गए। लेकिन जब लेके गए हॉल में से 3-4 लोग सहारा दे करके, और बाबा कुर्सी में थे कि पैदल थे वो तो मुझे याद नहीं, पर वो बाबा की मूर्त ऐसे मन में धसी है, वो उनकी दया है, ये उनका आशीर्वाद है, उनकी दया बिना ये नहीं हो सकता है। इतना क्लियरली याद है वो बाबा की चोटी, वो बाबा का पीछे का लोअर नेक, बाबा का सदरा, और ऐसे बाबा को लेके जाए। लेकिन इतना सफरिंग्स थे बाबा को, पीड़ाएं उस समय इतना थी और इतना यातनाएं थी। और मुझे अभी भी बाबा का वो पीड़ा भरा ही मूर्त याद है कि इतना सफरिंग्स बाबा को तभी थी। हालत बाबा की 69 में तो बाबा चले गए, तो इतना हालत बाबा की उस समय खराब थी। और वो लोग लेके गए तो एकदम मेरे सामने से ऐसा लेके गए बाबा को
तो सामने से एकदम वो जो बाबा का रूप है वो अभी भी मेरे मन में अच्छा सा याद है। वो जगह भी याद है, अभी जहाँ कुर्सियाँ रखी जाती है बैठने के लिए, पहले वहाँ पर घंटी है, अभी भी एक घंटी लगी हुई है। तो उसी जगह पे मैं खड़ी थी और वहीं से बाबा को लेके गए। ये एक आखिरी बाबा का दर्शन। उसके पहले वो समाधि के बाजू बगल में सब रूम्स है, वो भी याद है मुझे। और बहुत सुंदर भजन चल रहा था, अच्छा आनंद आ रहा था। ऐसे स्वर्गीय स्वर बाद में कभी मैंने सुने नहीं, वो भी याद है। एक सहवास का सब सफेद एकदम चदरे, ये जेंट्स लोगों का गद्दिया वगैरह रख रहे थे वहाँ पर, वो याद है। पर अभी चूंकि ब्रदर सैम ने और जिमी अंकल ने बताया हॉल के बारे में, तो मैं सोचा चलो मेरा पहला मतलब जो याद है, पहला दर्शन नहीं है बाबा का जब गृह में थे, तो मेरा आखिरी दर्शन है, यही बता दूं। और पहला दर्शन तो वो गुरु प्रसाद में जो हुआ था, वो ईस्ट वेस्ट गैदरिंग में पूरा भीग गई थी कंप्लीटली। 3 महीने की छोटी बालिका में थी और कुछ नहीं हुआ, ना सर्दी हुई ना कुछ नहीं हुआ, और 30 साल तक कुछ नहीं हुआ। तो ये सब जो है, ये सब उनके चमत्कार है। और मेरे पिताजी के बारे में बताना चाहूँगी। मेरे भी कई सारे, जैसा मैंने कहा कि हर कदम वो हमारा साथ देते हैं। अभी हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, ये सब स्फूर्ति उन्होंने दी। मंडे को रहता है मराठी बुक, मेहर बाबांच्या अध्यात्म पर लेख व संदेश, बहुत अच्छी किताब है। मराठी डिस्कोर्सेस समझे, 1946 का उसका पब्लिकेशन है। तो तभी तो बाबा की आज्ञा के बिना, उनकी परमिशन के, उनके वेरिफिकेशन के बिना कुछ नहीं होता था। बड़ा सुंदर किताब है। तो अभी आउट ऑफ प्रिंट है, तो इसके लिए हमने सोचा कि चलो ये सब तक पहुंचाया जाए। तो परमिशन ट्रस्ट से लेकर के वो काम शुरू किया। और अभी एक सज्जन डॉक्टर राजेंद्र निस्ताने है, जो वो आगे भी आए हैं उसका रीप्रिंट करने के लिए। और दूसरा है थर्सडे को ही रखता है, क्योंकि किताब का नाम थर्सडे, मतलब किताब, तभी वो लेक्चर को थर्सडे टिफिन लेक्चर करके जाना जाता था। तो ये थर्सडे को रखते हैं। ये सब प्रेरणा बाबा देते हैं। और इन कामों में ऐसे ऐसे अनुभव आते हैं, ये अभी ब्रदर सैम, जेनिस, ये लोग, आप लोग, जिमी अंकल, ये सब महसूस करते होंगे। वो बातें ना कही जाती, वो खाली महसूस की जा सकता है उसको। ये सब वही करवाते हैं। लेकिन करने में, एक कोई भी काम करने के बाबा का ये एक हमको अपॉर्चुनिटी होती है, संधि रहती है। कहीं भी मैं नहीं आना चाहिए। कोई भी काम करे हमने, मैं कभी यूज नहीं करना चाहिए। ये सब अगर अकेले भी आप कर रहे हैं तो भी हम का प्रयोग आया जाएगा। जो ऐसे ही 24 आवर्स का जो नाम जप चला, ये सब बाबा की कृति थी। हमको तो मन में डाउट था, दुविधा थी, अरे 50 लोग भी आएंगे कि नहीं आएंगे। 500 तक आ गए। 1 महीने क्या, 6 महीने अखंड नाम जप, 24 आवर्स नॉन स्टॉप। और बाबा का नाम जप मतलब रिचुअल होगा, ऐसा मन में था। वो भी कैसा बाबा ने हटाया। और जब आप कुछ भी मन में कोई भी अपेक्षा के बिना कुछ करते हो, पूरे प्रेम से, बस डेडिकेशन, बस करना है, कोई विचार ही नहीं रहता है उस क्रिया के पीछे, ना आगे ना पीछे, ना लाभ ना स्वार्थ, ना अहम ना नाम, कुछ भी नहीं रहता है ना। तो वो ऐसे ऐसे कारवा दिखाते हैं बाबा, ऐसी झलक दिखाते हैं कि उसको बताया नहीं जा सकता है। फिर भी एक दो मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि वो अहमियत उसकी इसमें है कि ऐसे इसके पहले पिछले साल भी 3 महीने का अखंड नाम जप किया था। और वो पहली बार ऐसा किया था कि पब्लिकली सबको उसको इन्वॉल्व करके वगैरह। और ऐसे ही नाइट स्लॉट्स मुश्किल रहता है। तो स्पेसिफिकली 1 बजे से 4 बजे तक कौन लेगा, कोई तैयार नहीं होता है। तो हम ही कभी 1 से 2 का लिया, कभी 2 से 3 का लिया, कभी 3 से 4 का लिया, अलट पलट के 4-5 लोग आपस में उसको करते थे ऐसा। तो ऐसे ही एक बार जब कर रहे थे और थोड़ी देर आंखें बंद की, वापस खोली। ज्यादातर आंखें बंद करके अच्छा लगता था। वापस खोली, अपना रूम में बैठी थी। इतना रात का 1 या 2 बजा था और अचानक बाबा आ गए। इट इज अनबिलीवेबल। आप लोग पागल है बोलोगे, आई नो। मैंने ये कभी मतलब ग्रुप में भी अभी तक नहीं बताया, जब ग्रुप में, बट मे बी बाबा इज काउंटिंग दिस।
अचानक बाबा आ गए और एकदम सूक्ष्म, इतना छोटे बाबा, इतना सूक्ष्म रूप में हम कह सकते हैं। बिफोर आई कम टू नो कि बाबा आए हैं, मैं मतलब बाबा आए ये मुझे मालूम हो, मैं महसूस करूं, इसके पहले बाबा आए भी चले भी गए, निमिषार्ध जिसको बोलते, क्षण मात्र आके चले गए फटाक से, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आए थे, आके गए, देख के गए। तो हमारा मन कैसा रहता है, या तो हम बोलते विश्वास नहीं करते, जैसा बाबा कहते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो अनुभव देने के पीछे जो उनका कारण रहता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, उसका महत्व कम हो जाता है। पर बाबा क्यों आए होंगे, मैंने आज क्या अच्छा किया, मेरा ध्यान किधर था, जो भी है, वापस आप अगर उस पल का इंतजार करोगे या अपेक्षा करोगे तो वापस कभी वो नहीं मिलता है। जहां भी अपेक्षा रहेगी कि पिछले बार समाधि में दर्शन करते हुए मुझे ये अनुभव हुआ तो अब भी हो, आप अपेक्षा करोगे कुछ नहीं होगा। ये आप जब गैर हाजिर, मतलब आपका मन जब गैर हाजिर रहता, वहां एब्सेंट रहता है, वो आप अपने आप को खो देते हैं, वहां वो आपको बिना मालूम करके धड़म से आ जाते हैं। जैसा ये अभी समाधि गए थे, शायद 2 महीने हुए या 3 महीने हो गए, जैसा खुल गया समाधि गए, जैसे खुलने के बाद पहला मौका मिला समाधि गए, सॉरी अभी मैं तुरंत महीना नहीं बता पाऊंगी, ये 2-3 महीने की बात है। तो कई महीनों के बाद गए थे समाधि, खुली है जाके आना चाहिए समाधि, वो तो अपना संस्कार कम कर देते हैं ना वहां जाके, जाने के बाद। क्योंकि ब्रदर सैम ने अभी मेहर मिलन में उस दिन भाषण दिया, बहुत अच्छा था, और मुझे लगा कि ये अनुभव कहना जरूर चाहिए, क्योंकि उनके अनुभव से भी कई लोगों को कई प्रकार की सीख मिली। तो जैसे समाधि से बाहर निकल ही रहे थे, मतलब अंदर तो जा नहीं सकते अभी, वो जाली है वहां से निकल रहे थे, तो साथ में बाबा थे। इट इज अनबिलीवेबल, मैं बोल भी नहीं सकती। रादर मैं कई दिन तक सोचती थी, और मैं जिमी अंकल को फोन करके ये बता के उसका मतलब भी पूछने वाली थी कि पहले मैं ये मेरे पिताजी के साथ करती थी, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दर्शन करते ही बाबा इतने हंसमुख, यंग एज के बाबा, सुंदर बाबा, चलो ऐसे ही साथ में चले, वो साथ रहे, साथ में चले वहां से और साथ में रहे। और मतलब मैं अचरज में पड़ गई कि बाबा कैसे क्या आजा, तुमको क्या तकलीफ है, बाबा कह रहे। और पूरा दिन बाबा उस दिन साथ में रहे, पूरे दिन। जैसे चल के पीछे से एनपीआर गए तो एनपीआर में साथ में महसूस हो रहा था, साथ में है बाबा, चल रहे बाबा, कर रहे। बाबा अब मैं खाना खा रही, क्या करूं? तो मैंने हस्बैंड को बोला अब ये बाजू की चेयर में बैठना नहीं, इधर ऐसा ही रखो। कैसा रहता है कि बाबा है, तो इनको नहीं बताया कि क्यों मैंने ऐसा कहा, वो तो सामने की चेयर में बैठ गए। तो मैंने सोचा अरे बाबा है साथ में, तो फिर अभी बाबा चलो खाना खाने के लिए तो हर रोज बोलते हैं, बोलना भी चाहिए। खाली बाबा साथ में बैठे हैं, वहां से भी चले, रूम में भी आए, कंटिन्यूअस पूरी तरह। इतना वो सुंदर अनुभव है कि बाबा का साथ में कंटिन्यूअस रहना, आप उसको नहीं ये कर सकते हैं, शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। उसकी जो फीलिंग्स है उस समय, जो आह्लाददायक, आनंददायी, वो अलग स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है। और फिर उस दिन भी हमारा बुक रीडिंग था मंडे का, तो मैंने बोला बाबा, तो मैंने यहाँ, बाबा बोले मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। मैंने वहां पर भी और एक चेयर रख दी कि बाबा बैठ जाएंगे वो चेयर पे। बाबा वो बुक रीडिंग के दौरान भी पूरा तो वहां पर थे। हम ही हैं बाद में अपनी बातों में कोई बाबा प्रेमी मिल गया, उलझ जाते नहीं। बाबा लौटते में भी बॉम्बे के जो यात्रा थी तो गाड़ी में भी बाबा थे। अब कब कहाँ बाबा का साथ छूट गया, नहीं वो तो है, पर वो जो महसूस होता है। खैर मैं जय बाबा अपने पिताजी के बारे में बोलना चाहूंगी। ब्रदर सैम ने और एक बार मुझे बताया था कि ये मेरा अनुभव, ये मीटिंग में मैं जरूर कहूँ, पर मुझे कल से थोड़ा कंफ्यूजन था कि दादा के बारे में बोलना है कि खुद के बारे में, क्योंकि ऐसे
है बाबा की दया से कुछ ये। तो अगर समय मिला तो वो जो ब्रदर सैम बोल रहे थे कि मरी हुई को जिंदा करके जो बाबा ने अनुभव किया, उसका भी अपना एक महत्व है। आजकल के अभी यंग लोग हैं, सब लोग अपना ऑफिस में बाहर ये अनुभव करते होंगे, तकलीफ होती होगी। कोई मच्छर कर रहा होगा, स्पर्धा होगी, कोई ने आपको रिपोर्ट किया होगा खराब। तो ये हर समय हमको सोचना चाहिए कि ये बाबा कर रहे हैं, मेरे संस्कार कम करने के लिए कर रहे हैं। इसके बावजूद हमको उससे प्रेम से बर्ताव करना चाहिए। ये मैं खाली बोल नहीं रही हूँ, ये मैंने खुद किया है नागपुर में। और जो मेरी सहचारी ऑफिसर थी, उसने बोला भी कि ये क्योंकि बाबा की फोटो टेबल पे रखी रहती थी, तो ये बात उसने घर में चर्चा की कि वो ऑफिसर उम्र में कम है, एक्सपीरियंस में कम है, इतना इंसल्ट करता है, तकलीफ देता है मैडम को, फिर भी मैडम उसके साथ कैसा इतना प्रेम से आदर से व्यवहार करती है, इतना मदद करती है। तो फिर वो बाद में बोलने लगे कि मैडम ये केवल आप नहीं, ये मेहर बाबा ही। पहले बोलती थी ये मेहर बाबा की वजह से आप करती हैं, वो बाद में बोलने लगी कि ये केवल मेहर बाबा ही कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा बर्ताव होना चाहिए कि वो सामने वाला भी ये कहे। पाथरडी के वीआर बड़े एडवोकेट, इनका जिक्र आया है, तो उनकी मैं बेटी हूँ, तीसरी कन्या हूँ। और 1946-47 से ही बाबा के बारे में उन्होंने सुना था, क्योंकि वो पूना में हॉस्टल में रहते थे। और एलबी थाड़े जो है, लक्ष्मीकांत थाड़े, वो उनके हॉस्टल के रेक्टर थे। और उनके घर में बाबा के प्रोग्राम होते थे, भजन होते थे, वो सब में मेरे पिताजी विठल राव बड़े जाते थे और उनसे बहस करते थे कि भगवान कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह। फिर 1950 में मेरे पिताजी मैसेज करते, ही इज आस्किंग। जय बाबा, हेलो। कैरी ऑन, कैरी ऑन। आप कंटिन्यू करिए। जी, अच्छा, मुझे लगा कुछ मुझे। हाँ, और जेनिस और ब्रदर सैम, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये मेरे घर में घड़ी नहीं है और मैं यहाँ पर जूम में घड़ी सामने दिख भी नहीं रही हूँ, तो आप मुझे प्लीज वो बेल बजाते ना वैसा 5 मिनट पहले बता दीजिए क्या टाइम हुआ है। ओके ओके ओके, हाँ, ठीक है। तो पिताजी एलबी थाड़े जी के माध्यम से बाबा के कांटेक्ट में आए। 1950 में महाबलेश्वर में आगा खान पैलेस में उनका बाबा का पहला दर्शन हुआ और वो दर्शन बहुत ही सुंदर था। जब उसके बारे में पहले भी एक हकीकत है, पर खैर वो सब बताते जाऊंगी तो समय की इतनी कमी है हमारे पास। तो वहां पर बाबा के साथ नजरें मिलने के बाद जो कुछ अनुभव पिताजी को हुआ, वो बाबा की आंखों में से बिजली जैसे तार निकल करके पूरे हृदय में सीधे गए, बाबा दादा बताते हैं। और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो कहते हैं कि वो बताने में वो असमर्थ है। तो 1950 में वो उनका बाबा का पहला दर्शन हुआ और तब से उन्होंने एक भी मौका नहीं छोड़ा बाबा से मिलने का और बाबा के दर्शन का। और धीरे धीरे उनको, ये देखो, मैं बाबा को ईश्वर अवतार सब कुछ मानती हूँ, उनके ऊपर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, वन एंड सोल। उसी प्रकार मेरे पिताजी पहले विठल भक्त थे, ये वारकरी लोग हैं, लेकिन ये जो कन्विक्शन, अब वो उनके जीवन में बाबा के अलावा कुछ भी नहीं, वो पूरे बाबामय है। पर बाबा ही ईश्वर है, बाबा ही अवतार है, बाबा ही सब कुछ है, हर सांस में वो बसे है, हर जगह यहाँ पर वो मौजूद है। ये सब जो कन्विक्शन है, ये कन्विक्शन, फुल कन्विक्शन पहले से है। दादा को तब से हो गया, उसके बाद में धीरे धीरे हो गया और हमको बाई मतलब बर्थ से ये बाबा ने ये गिफ्ट दिए हैं। ये अनमोल देनगी है, अनमोल गिफ्ट है, ये बाबा से ही है। अगर ये कन्विक्शन हम में है तो ये भी उनकी देन है, उनका कृपा प्रसाद है। और ये सब है जो वाडिया पार्क का
वाडिया पार्क, मेरी आवाज मुझे वापस सुनाई। जय बाबा, मेरी आवाज मुझे वापस सुनाई दे रही है। अभी क्लियर है आंटी जी। जी जी। तो वाडिया पार्क का 2 दर्शन प्रोग्राम हुआ था। इज देयर सम प्रॉब्लम? मेरा आपने 2 जे- डिवाइस से लॉगिन किया है? नाही, अरे मनीषा बाबा तुमचा मोबाईल तिकडे घेऊन जाता? नाही, पर वो बंद है, मोबाइल तो उनका बंद है, समय के लिए अभी ला के रखा है। हाँ, तिकडे घेऊन जा मोबाइल। जी, अभी एको बंद हुआ है। जी, तो नहीं अभी भी चालू है। जी। 1954 में जो वाडिया पार्क में दर्शन प्रोग्राम हुआ बाबा का। जय बाबा। आंटी जी एक बार म्यूट करके अनम्यूट करिए। जी। अ, 1954 में जो वाडिया पार्क में दर्शन प्रोग्राम हुआ, उस सहवास प्रोग्राम में मेरे पिताजी और मम्मी दोनों भी वॉलंटियर थे। उनकी शादी नहीं हुई थी। मम्मी को तो शायद थाड़े जी ने चुना था उनकी स्कूल में से, वो कन्या स्कूल से बहुत सारे वॉलंटियर, तभी बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत भीड़ थी उसमें कि अहमदनगर के अगल-बगल के जो गाँव है, शहर है, उसमें से भी लोग आए थे दर्शन के लिए। और पिताजी ने फिर बाद में कोई भी मौका नहीं छोड़ा, और जब उनको पूरा कन्विक्शन हो गया कि बाबा ही ईश्वर है, तो जब वो पहली बार बाबा को कन्विक्शन के बाद मिलने गए, वो बताते हैं, उसके बाद में उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। और तभी रामचंद्र गाड़ेकर अंकल और ये हमेशा दादा को बहुत करते थे कि अंदर से कहीं से खबर मिले कि बाबा यहाँ मिलने वाले, क्योंकि तभी पिताजी पूना में थे। बाबा वहाँ मिलने वाले, यहाँ से जाने वाले, वहाँ से जाने वाले, तो पूरी खबर उनके पास पहुंच जाती थी। तो ऐसे बाबा एक बार बिंद्रा हाउस में रुके हुए थे और दादा को खबर पड़ी कि यहाँ पर बाबा है, तो फिर बोले कि अब मैंने तो इनको पूरा ईश्वर मान लिया है। तो फिर अभी तब तो बाबा के बारे में या ये लेक्चर वो सब ज्यादा जानते नहीं थे, तभी लिटरेचर भी इतना नहीं था और पढ़ा भी नहीं था उन्होंने। तो भगवान को क्या नारियल चढ़ाते हैं, तो नारियल लेके जाना चाहिए करके पहली विजिट में वो कुछ नहीं लेके गए थे। और ये विजिट में फिर बिंद्रा हाउस में जब पिताजी गए, तो बाबा को चढ़ाने के लिए उन्होंने फिर एक नहीं, वो बोलते हैं 5 या 7 ऐसा नारियल, वो 5 नारियल शायद लेके गए। वो बोलते क्यों लेके गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं 5 नारियल लेके गया और फिर बाबा को दिए। तो बाबा उतर ही रहे थे, तो बाबा ने रख लिया है, लेकिन बाबा ने बोला कि इतने सारे क्यों लाए? अगर भगवान को कोई नारियल चढ़ाता है, तो 1 नारियल चढ़ाता है, तूने इतने सारे नारियल क्यों लाए? तो ये एक घटना है। और जो होम विजिट्स होती थी पूना में बाबा की, उसमें कई बार दादा शामिल थे। जो मधुसूदन के घर वे गए थे, सीक्रेट प्लान था बाबा का मधुसूदन के घर जाने का, और भजिया बनवाई थी प्रसाद के तौर पे, ये हकीकत आप सबको मालूम है। तो बाबा जी इनको साथ में लेके गए, उसमें मेरे पिताजी भी थे। अब मैं उसका, हम लोगों को इस तरफ से उसका वर्णन मालूम है। अब वहां पर बाबा की तरफ क्या क्या हुआ था उसके पहले वो सब पिताजी बताते हैं, लेकिन समय के चलते मैं अभी उसको कट शॉर्ट करती हूँ। और इसके पहले पिताजी के कई सारे अनुभव है, पर इसमें एक मैं जरूर बताना चाहूंगी, और जो है कि हम सब लोगों को की आज्ञाकारिता कैसी होनी चाहिए। पिताजी बहुत होशियार थे, वो एडवोकेट है, और वो जज के इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। यंग एज था और जज का तो वो तो आराम से पास कर लेते थे, लेकिन पाथरडी से निकले और अहमदनगर से आगे पास होना है पूना में। तो अहमदनगर चलो जैसे भी मौका मिलता था, वो हर बार इतने बार दादा के दर्शन हुए। वो कोई दर्शन प्रोग्राम सहवास के लिए रुके नहीं थे। सहवास जब भी होता तब तो वो वॉलंटियर होते थे हर सहवास प्रोग्राम में, दर्शन प्रोग्राम में। पर तभी, क्योंकि वो तभी पाथरडी रहने गए थे, जो अहमदनगर से 1.5 घंटे की दूरी में है। तो जब भी पाथरडी से वो अहमदनगर पूना जाते थे, वो हमेशा जरूर, जैसे पड़ोस, कोई पड़ोस रहते हैं पड़ोसन, वो हमेशा पड़ोस वाले के घर में जो झाँक के देखती है, कभी मौका मिलता है, तभी वो हमेशा देखते थे कि दर्शन अलाउ है, बाबा परमिट करते हैं, तो बाबा का दर्शन लेके फिर कई बार हम अहमदनगर हो, पूना हो, गुरु प्रसाद हो। तो वैसे ही वो जज के इंटरव्यू के लिए बाबा का दर्शन लेके फिर आगे पूना जाने का सोचा, और जैसा बाबा के दर्शन के लिए गए, तो बाबा ने कहा उनको, तो आदि काका ने बताया
कि बड़े जा रहा है जज की इंटरव्यू के लिए। तो बाबा ने एक ही सेंटेंस बोला कि पाथरडी छोड़ना नहीं। तभी वो पाथरडी रहते थे। तो पाथरडी अगर तो जज का इंटरव्यू देते तो उनका तबादला हो जाता था। अब इतना यंग एज, कितनी ख्वाहिशें रहती है, पैसों की कमी होती थी, लेकिन जैसा ये सेंटेंस उन्होंने सुना, वो इंटरव्यू तक तो नहीं गए, पूना तक भी नहीं गए, वहीं से वो वापस पाथरडी लौट गए और कभी उन्होंने जिंदगी में पाथरडी छोड़ी नहीं। अब तो उनका फिजिकल हालत ऐसा है, नाउ ही इज 95, ही हैज क्रॉस्ड। अब हालत ऐसी है कि वो अकेले नहीं रह सकते करके पूना में बहन लेके आई है उनको, या हम कभी यहाँ लाते हैं। अभी अस्पताल में एडमिट थे, सोडियम बहुत नीचे गिर गया था, भ्रम हो गया था, हम लोगों को किसी को पहचान नहीं रहे थे, लेकिन पूरे टाइम बाबा का नाम कंटिन्यूअसली मुख में था। वो भी ऐसा ही नहीं, हाथ जोड़ कर बाबा का कंटिन्यूअस नामस्मरण चलता था, जबकि बोलने की भी उनमें ताकत नहीं थी। और मैंने पूछा कि भजन लगा दूं, तो जैसा मधुसूदन का भजन मैंने ऑडियो पर उनको सुनाया, तो उन्होंने तुरंत आवाज पहचान लिया। मध्या, वो मधुसूदन को मध्या कहते थे प्यार से, क्योंकि वो बचपन से, मतलब यंग एज से लोग हम उम्र है साथ में ये थे, तो मध्या मध्या और करके ऐसा ऐसा करके तालियां बजा के पूरे भजन उन्होंने मस्त सुने। और हॉस्पिटल में जब प्रेयर बोली तो पूरी प्रेयर बराबर बिनचुक अच्छे से बोली, उसमें एक शब्द भी नहीं बोले, जबकि हम सबको भूल गए थे, किसी को पहचान नहीं रहे थे। खैर, तो मम्मी का एक दर्शन का ऐसे तो ये आज्ञाकारिता होती है कि बाबा को पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, वो डिसिप्लिन पूरा रखते थे। अरे क्या होता है, सब पहचानते जाओ, कभी भी जाओ, कभी नहीं। हमेशा उन्होंने हमको सिखाया कि रूल कभी नहीं तोड़ने हैं, और बाबा से कभी कुछ मांगना नहीं, ये एक उन्होंने सिखाया था। मैं मम्मी का भी एक किस्सा बताऊंगी। हालांकि इतने सारे किस्से हैं, पिताजी को बाबा ने कैसे काम सौंपे थे और कैसे हालत में उन्होंने कैसे किए। उन्होंने एक पुस्तक प्रदर्शित किया, फिर बाबा ने एक उनको लिख कर के दिया, और कई सारी घटनाएं हैं। उसके लिए मुझे लगता है 5:30 बजे ही जुड़ना पड़ेगा, तब जा करके वो दादा की पूरी कहानी खत्म होगी। मम्मी का एक बताती हूँ कि मम्मी से भी बाबा कितना प्यार करते थे, ख्याल रखते थे उनका। कि उनकी शादी के बाद, ये तो 54 में वो वॉलंटियर थी, पर जब वो दादा के साथ, उनके पिताजी के साथ उनकी शादी हुई, बाबा को जानने लगी, मानने लगी, तो हर उनके कार्य में बाबा का ख्याल होता था। जैसे कुछ भी घर में किया खाने के लिए, अच्छा तो वहां पहुंचा देना। और जैसे जैसे सेवई की, वो भी बड़ी हकीकत है, शायद सभी को पता भी होगी, उस पर बाद में आएंगे समय मिला तो वो खुद ही बोलेगे, अरे ये बाबा को पहुंचा दो। तो ये उनका जो दर्शन है शादी के बाद में, उनका जो दर्शन है उसके बारे में मैं बताती। शायद साकोरी में ये दर्शन हुआ था, और सभी लोग गए थे वहाँ अहमदनगर से, पूना से, और बाबा का दर्शन प्रोग्राम चल रहा था। एक तरफ गाने का भी, भजन का प्रोग्राम चल रहा था, मधुसूदन पार्टी भजन गा रहे थे, और लाइन में लोग आकर के दर्शन ले रहे थे। मेरे पिताजी तभी भी वॉलंटियर ही थे ऐसा लाइन वगैरह के लिए। तो जैसे मम्मी का नंबर आ गया और मेरी मदर ने झुक कर बाबा का दर्शन लेने वाली थी, जैसे उनका नंबर आया, वो बाबा के सामने खड़ी थी, तुरंत बाबा ने ऐसा हाथ दिखा करके लाइन स्टॉप की, भजन स्टॉप किया, भजन वाले को बस रुकाने को बोला, उनको खड़ा होने दिया ऐसे ही सामने, और फिर पूछा कौन है। फिर बाजू में पूछा बाजू वालों को कि ये कौन है। फिर रांगोळे काका खड़े थे, फिर रांगोळे काका ने फटक से दादा को आवाज दिया और बताया ये बड़े की मिसेस है। तब तक दादा आ गए। फिर दादा को बाबा ने पूछा कौन है, तो उन्होंने बोला हाँ मेरी मिसेस है करके। तो फिर मम्मी ने जब बाबा के पैर पर माथा टेका, तो बाबा ने उनके माथे पर ऐसा हाथ रखा, पूरा आशीर्वाद का हाथ, और फिर वापस उन्होंने चुटकी बजा के वापस गाने का, भजन का प्रोग्राम, और लाइन शुरू हो गई। तो क्या होगा वो जीव, आज की उनकी भी हालत ऐसी है कि हम लोग को किसी को वो पहचानती नहीं, लेकिन बाबा की प्रार्थना भजन पूरे बराबर गाती है, बोलती रहती है। और जैसे बाबा दिखाई देते हैं, कोई अच्छा भजन सुनती है तो रोती रहती है, और इतना खुश होती है बाबा के फिल्म वगैरह फोटो देख करके। तो ये होता है असली प्यार। हम लोग सब क्या है, भाई बहन हस्बैंड, आज है कल नहीं है, पिछले जन्म में किसके थे, आगे के जन्म में किसके है, इसका कुछ को पता नहीं है। वही एक है परमात्मा जो हमारा है, उसके साथ में रहने का, उसकी याद में रहने का,
ये बड़ा। और तो आगे भी बाबा दादा जब भी बाबा के दर्शन में जाते थे, अगर मदर साथ में नहीं तो बाबा ऐसा करते थे, ये बैंगल का, और उसको क्यों नहीं लाया। फिर मैंने मम्मी को पूछा, जब तुम जाती थी तो बाबा कुछ बोलते थे? तो बोलते कुछ नहीं बोलते थे। तो बाबा कैसे थे? बहुत सुंदर थे बोलते, और इतने मखमली जैसे पैर बाबा के थे, इतने मुलायम थे। तो हम सबने सुना कि मक्खन भी उसके आगे ज्यादा सख्त होगा, इससे मक्खन से भी मुलायम पैर। और ये बहुत वर्णन अच्छा करती थी मम्मी। हमारे पास समय कितना है? यहाँ टाइम, ये घड़ी दिखती नहीं है। है 5-10, जितना आप जाइए, गो ऑन कैरी ऑन, डजंट मैटर। ठीक है। तो मम्मी ने सेवैया बनाई थी, और फिर वो घर में बनाई थी सबके लिए। तभी वो गेहूं के असली वो अच्छी का बहुत गृहिणी में क्या बोलते, सुगरण बोलते हैं ना मराठी में, हिंदी में क्या बोलते मालूम नहीं, वेरी गुड कुक। तो वो ऐसा पाट पे सेवई बनाई थी, और जैसे बनी तो उसको ख्याल बाबा का आया। हर क्रिया में बाबा का ख्याल करना, जब हम कुछ अच्छा एंजॉय कर रहे हैं तो वो उसमें बाबा को शामिल करना। तो उसने पिताजी को बोला, ये सेवई थोड़ा पहुंचा देंगे बाबा को? तो बोले हाँ जरूर पहुंचा देंगे। तो सेवई पहुंच गए मेहराज हाथ में। और उस समय में ये चल रहा था, आपने मेरा माई की वो वीडियो भी देखी हुई जिसमें मेरा माई ने जिक्र किया है कि पहले बाबा नाश्ता करते नहीं थे। इसके बाद में बाबा का नाश्ता शुरू हो गया, तो उन्होंने उनको कुछ ब्रेड बटर ऐसा कुछ देना शुरू किया, वो बाबा को जमा नहीं। फिर ओट्स या कुछ ऐसा देना शुरू किया, वो जमा नहीं। और उसी दौरान ये सेवई वहां तक पहुंच गए। तो आदि काका ने जैसा वहां पर पार्सल दिया, लेके गए बाबा के पास। बाबा ने पूछा क्या है? तो बोले बड़े की वाइफ ने ये सेवैया भेजी है आपके लिए। तो बाबा ने रख लो बोला। फिर वो लोग, उनको मालूम नहीं था कैसे बनाना। तो फिर उन लोगों ने, वो जो सर्वेंट लोग हैं उनसे पूछ के सेवई की खीर बना के, मतलब सेवई बनाते हैं ना हम, थोड़ा दूध थोड़ा शक्कर डाल के हल्का सा, वो बाबा को दी, और बाबा को बहुत पसंद आई। उसके बाद में बाबा का रेगुलर नाश्ता शुरू हो गया, और हर रोज बाबा जब भी नाश्ता लिए वो सेवई नाश्ता में लेते रहे। और उसके बाद में गोहर आंटी का वहां से लेटर आया कि यदि आपको दिक्कत ना हो, कंडीशंस देखो, उसी प्रकार के, उसी गेहूं की उतना ही नमक, उसी प्रकार के बना के, अगर आपको दिक्कत न हो तो ऐसे सेवई क्या आप भेज सकते? हमेशा बाबा को नाश्ता में पसंद आई है। ये तो मना करना पॉसिबल ही नहीं था। और ये खुद वो जोड़ गेहूं बोलते हैं, वो अलग प्रकार का गेहूं, और मम्मी खुद उसको इस पे पीसते थे। क्या बोलते वो ग्राइंडर, जातो बोलते मराठी में। वो पत्थर का जो रखा है, शेड में रखा है ना बाबा के यहाँ पर, जिसपे बाबा फिर भी करके बच्चों को, स्कूल के बच्चों को आटा बना के खुद देते थे, ऐसा घर में था। तो उसमें बना के वो करती थी। तो वो ये सिलसिला, और बड़ा बड़ा ये टिन है, एक फोटो आपने देखी होगी, वो टिन बजाते हैं जैसा मेहराबाद में ऊपर म्यूजिक रूम में वो फोटो सामने ही रखी है, और टिन बाबा बजा रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े टिन के पतरे के डब्बे में बैठ कर, क्योंकि वो नाजुक रहता है, तो वो बना के सुखा के वो पिताजी लेके जाते थे अहमदनगर, आदि काका को देते थे, वो मेहराजाद में पहुंचा देते थे। कई महीनों तक ये सिलसिला चला, कई दिनों तक, कई वर्षों या महीने में पता नहीं। पर इसके बाद में हुआ यूं कि मेरी छोटी बहन है मेहर ज्योति, आप लोग बॉम्बे वाले जानते हैं सब उसको। उसके टाइम में मेरी मम्मी कैरिंग थी, और ऐसी हालत में वो फिर भी बना रही थी। फिर उसकी मम्मी, मतलब हमारी नानी वहां पर आई, और नानी ने उनको बोला कि अब तुम मत बनाओ ऐसे हालत में, क्योंकि वो 2 पैर 2 बाजू में लकड़े के प्लैंक पर, और 2 पैर ऐसा बाजू में रख के बैठकर वो करना पड़ता है, जिसको पता है वो समझ रहे होंगे। तो ये हालत में ठीक नहीं है, एडवांस स्टेज थी या 8 मंथ कुछ था, तो तुम हटो। तो बोले नहीं, बाबा को पहुंचानी है सेवई। तो एकदम साइलेंट लो मम्मी का जो है बाबा के लिए। तो बोली कि मैं बनाती हूँ। और उनकी मम्मी ने, मतलब हमारी नानी ने वो सेवई बना के, जैसा ही वो पार्सल पहुंच गया बाबा के पास में, जैसे ही वो पार्सल वहां पर पहुंच गया और बाबा को सूचना दी गई, उनको नहीं मालूम किसने बनाया। बस पाथरडी से पार्सल आया, वो तो मेहराजाद, ये लोग पाथरडी में। तो बाबा ने आदि काका को बुला के बोले लेटर लिखो, स्टॉप सेवई, इसके बाद में सेवई भेजो मत। अब वो परमात्मा सर्वज्ञ है, वहां बैठ कर के उनको पता चला
कि हाथ बदल गया, या उनके माँ के साथ जो भी उनके है वो बाबा ही जाने। तो ऐसी ब्लेस्ड आत्मा है, वो ऐसी है ना, वो प्रोफेसर करके रिटायर हो गई, प्रोफेसर थी, पर कभी पैसों को हाथ नहीं लगाया। कैन यू बिलीव दैट? वर्किंग वुमेन आप कोई भी देखो, नॉन वर्किंग भी देखो, वो कभी मार्केट गई नहीं, अपने लिए कभी साड़ी खरीदी नहीं, कुछ भी खरीदा नहीं है, पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। और ये उनकी खुशनसीबी की वो सब व्यवहार दादा देखते थे। वो बैंक में सैलरी जमा होती थी या जो भी होता था, वो कभी पैसा ली नहीं, ना खर्ची, ना मार्केट, उसको कभी पैसे का हिस्सा भी नहीं आया, और ना पैसे को उसने कभी हाथ लगाया। ऐसा हो सकता है? वो कमा रही है, घर चला रही है और पैसे को हाथ नहीं। इतना स्पेशल ब्लेसिंग मैं समझती हूँ बाबा ने उनको दिया है, क्योंकि यहाँ तक कि उनकी फ्रेंड के बेटे की शादी हैदराबाद में थी, तो वो शादी में जाने का, हैदराबाद ट्रेन जाने का था, पिताजी तो कहीं जाते थे नहीं थे, ना नाटक, ना सिनेमा, ना साइट सीइंग, कुछ भी नहीं। और सिंपल अपना 2-4 ड्रेस है, जो सादा कपड़ा वही पहने, बहुत कम जरूरत है उनकी। तो वहां पर जाने के टाइम में मैं 12th पास किया था, तो पैसा पिताजी ने मुझे सौंपा और मुझे समझाया, क्योंकि उनके मालूम है वो मैं करेगी नहीं। तो ऐसा भी सोल्स होते हैं। और जो नाम का मैं बता रही थी कि मेरा नाम जो बाबा के द्वारा दिया है, तो जब पिताजी, मम्मी और इनको पहली बेटी हुई, मेरी बड़ी बहन जो है अभी पूना में, मम्मी डैडी का ख्याल रखती है, डॉक्टर मेहरांजनी, तो वो जब पैदा हुई उस समय था कि सब जानकारी बाबा को देनी होती थी। तो दादा ने लेटर लिख के बता दिया कि बेटी हुई है, नाम क्या रखे। तो बाबा के यहाँ से जवाब, ये जरूर ध्यान रखिए, सब लोग प्लीज सुनिए, इट्स वेरी रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा है कई फॉरेनर्स हंसते थे। एक बार मैं एमपीआर ने सुना कि अरे सबके नाम मेहर मेहर कैसे है। तो जब जैसे लेटर गया बाबा को कि नाम क्या रखना है, बाबा के यहाँ से रिप्लाई आया। सब लेटर आप लोग तो सब वो प्रोसीजर जानते हैं, बाबा सब पर लेटर सुनते थे और लिखवाते थे सबका रिप्लाई। तो वहां से रिप्लाई आया, लेटर होगा भी मेहर ज्योति के पास, कि नाम कुछ भी रखो अपनी पसंद का, द प्रीफिक्स शुड बी मेहर। आप नाम कोई भी रखो बच्चे का, पर नाम के पहले मेहर होना है। तो इसीलिए हम दादा ने देखो, पाथरडी जैसा देहात, वहां लोग क्या सोचेंगे क्या समझेंगे वो सोचा नहीं। सबके नाम ऐसे, सबसे बड़ी मेहरांजलि, फिर मेहर प्रसाद जो बाबा के पास गया समाधि से ही, फिर मैं हूँ मेहर कृपा, फिर मेहर ज्योति, और फिर मेहर आरती, द एंड आरती। और इसका कारण है कि देखो पहले के जमाने में भी राम, लक्ष्मण, सीता ऐसे नाम थे। क्यों? जब आप बुलाओगे मेहर कृपा, आप बोलेंगे, सैम भाई बोलेंगे अरे वो मेहर कृपा को पूछो, बोलती है क्या 2-4 शब्द। जेनिस बोली अरे मेहर कृपा तो तैयार नहीं, या मेहर कृपा का फोन। हर बार मैं ऑफिस में बोलूंगी नाम क्या, मेहर कृपा। वो किसी ने उसका मेहर किया, कृपा किया, करने दो। बताते समय में कभी सरनेम नहीं बताया, चाहे कितना भी हाई पोस्ट में जाओ, मेहर कृपा। उतने समय में जब भी वो आवाज देंगे मेहर कृपा इधर, मेहर कृपा जेवली का, जितना भी बार मेरे पिताजी या कोई भी मेरा नाम लोगे, उतना बार बाबा का नाम मुख में आएगा। ऐसे आपको बाबा की याद नहीं आएगी तो वैसे आएगी। और होता है ना, बाबा कहते कि अंत समय में मेरा नाम रखो अपने मुख में, तो आपका बेड़ा पार। तो ये यू विल कम टू मी। अब यू विल कम टू मी का विश्लेषण में मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर होता है कि इंसान के आखिरी दिनों में हालत कैसी होगी वो ईश्वर जाने, और बुद्धि चले नहीं चले, किसका मन कहाँ लटका है, कहाँ अटका है। अगर कुछ नहीं, बच्चों को ही अगर वो प्यार से भुलाया, बच्चों को यूजुअली सब मरते समय याद करते हैं, आवाज देते हैं, जैसे राम को याद किया था उनके पिताजी ने। अगर मरते समय में वो नाम अपने बच्चों को भुलाना चाहे, उस समय उसको भुलाने के लिए सही, अगर मेरे पिताजी बोलते मेहर कृपा इधर आओ, तो अपने आप मेहर बोलते ही उनका प्रभु का नाम मुख में आएगा अंत समय में। एक उसका बेनिफिट है। और अगर नाम मेहर कृपा रखते तो मेहर कृपा ही बोलो, उसका शॉर्टकट करने से उसका जो मकसद है उसमें से वो निकल जाएगा। तो ये जो नाम का बताया था, समय है 5-10 मिनट बस। ठीक है। दादा ने और एक में जितना मतलब सबको गाइडेंस हो सकता है, ऐसे ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ।
शुरू के दिनों की बात है। बाबा का बर्थडे सबने बताया कि हर एक को अपने अपने जगह मनाना है तो वहीं मनाएंगे, नगर पास में है तो वहां चले गए, ऐसा नहीं। तो दादा तभी उनका करियर शुरू ही हो रहा था, पैसे की हमेशा कमी रहती थी। तब बाबा का बर्थडे आया, कैसा मनाना है? बोले कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, अब अच्छा तरीके से बनाते हैं। अब पूरे गांव को तो मैं प्रसाद नहीं बांट सकता हूँ, मेरा इतना ये नहीं है। तो उन्होंने आइडिया किया, उन्होंने क्या किया, एकदम असली घी में बढ़िया से स्पेशल ऑर्डर देके बड़े बड़े बूंदी के लड्डू बनवाए। और जो केशव करके एक था, मुझे अभी भी याद है, वो आदमी लाल फेटा पहनता था, उसके सर पर वो बड़ी टोकरी दी थी लड्डू की। और उस समय में ऐसा रहता था तो एससी-एसटी लोगों का गांव के बाहर निवास होता था, गांव में उनको नहीं रहने देते थे। उस समय की बात है, वो महारवाड़ा बोलते थे उसको। तो वो पूरा वो केशव को लेकर महारवाड़ा गए, जहाँ कोई यूजुअली जाते नहीं थे, कि वो छूता-छूत का बहुत चलता था उस समय में। और यानी महारवाड़ा अनटचेबल्स, हम्म, वो लोग अनटचेबल्स थे। एग्जैक्टली अनटचेबल्स। तो वहां पर अनटचेबल्स की बस्ती में वो गए और सबको बाबा का प्रसाद के, मेहर बाबा का जन्मदिन है, ये प्रसाद लो करके सबको बूंदी के लड्डू दादा ने बांटे। इस तरह उन्होंने बाबा का बर्थडे पाथरडीन में मनाया। तो इसके बाद में कभी तो भी वो गए और मेहराजाद या मेहराबाद में सब बैठे थे और दादा, हाँ मेहराजाद हॉल में, दादा वो डोर से अंदर आए इसके पहले बाबा ने एरेज को बताया कि देखो इसने ऐसा ऐसा किया बर्थडे में, अब आएगा तो पूछ लेना। और जैसे दादा मतलब एंटर भी नहीं किए, हॉल में से अंदर आ गए दर्शन करके, वो तो कभी बताते नहीं थे क्या किया क्या नहीं, लेकिन वो तो बाबा सर्वज्ञ है। वहां बटे हुए लड्डू बाबा को, जब वो अनटचेबल्स को इतना प्रेम से खिलाया, वो बाबा का असली प्रसाद बाबा को पहुंच गया। ये बाबा ने एरेश को बताया और फिर एरेश ने बाबा दादा को बोला कि कैसा है क्या है, बर्थडे कैसा मनाया। बाबा चाहते तुम सबको बताओ, बाबा चाहते तुम सबको बताओ बर्थडे कैसा बनाया। और फिर जब दादा ने बताया, अरे तो सिंपल, वो थोड़ा ये कर रहे थे कि लोग इतना ग्रैंड ग्रैंड तरीके से करते हैं, मैं क्या बताऊं। तो बोलते नहीं, बाबा चाहते तुम बताओ। फिर दादा ने ये हकीकत सबको बताई। तो उसके पहले एरेच ने बोला बाद में कि बाबा ने मुझे पहले ही बोल दिया था। तो ऐसा प्रेम होता है, जो प्रेम से किया जाता है वो उसके तक जरूर पहुंच जाता है। आगे मौका मिले तो और भी है। ये मौका के लिए धन्यवाद। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। थैंक यू मेहर कृपा जी, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई सवाल पूछना है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। हाँ जरूर जरूर पूछिए, कोई भी पूछना है तो अभी मौका है, फिर हाँ, वो भाग जाएंगे। कुछ भी पूछिए, पूछ लीजिए। Anybody? Jimmy Khan, any questions? No, sir. No, sir. Okay. Anybody else wants to ask anything? जिमी अंकल, मैं आपको ही फोन करने वाले थे कि भाई आज इन्होंने बोला है अपना, बोलो अब क्या करूं मैं। This was बाबा ने बुला दिया आपको, इतना सारा नहीं, बोला, बाबा से मुख से बोल दिया सब। वो जो जय नहीं बोलना बाबा। था। जय बाबा। जैसे आपने बताया कि आपकी माता जी पैसों को हाथ नहीं लगाती थी, तो ये कब से नहीं लगाती थी? बाबा को देखने के बाद से या पहले से ही नहीं लगाती थी? हाँ, पहले का तो मुझे मालूम नहीं कौन सवाल पूछ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी। हाँ, नीलम बोल रही हूँ मैं। हाँ जय बाबा नीलम जी। पहले का जय। तो मैं बता नहीं पाऊंगी, वो तो बेचारी काम वगैरह करती थी, अपने माता पिता की बहुत मदद करती थी, बहुत गरीबी में पली है, लेकिन स्कूल में बहुत, हमेशा उनका नाम अभी भी है, वो बोर्ड में पहली वगैरह आती थी। और उनको सहेलियों में चैलेंज भी किया था, उनका बीएड के एग्जाम पे, उनका संस्कृत विषय था और 56 या 55 का पहला जो महिलाओं का सहवास था उसमें उनको बुलाया गया था और परीक्षा मुंह एकदम नजदीक आने वाली थी।
तो उन्होंने पिताजी ने बोला तुम चिंता मत करो, अभी जब बाबा के सहवास में जा रहे हैं तो बाबा का इंस्ट्रक्शन था अपनी सब चिंताएं छोड़ के आना है, उसको साथ में लेके आना है तो आना ही है। तो सभी उसकी सहेलियों ने बोला अरे एग्जाम छोड़ के वहाँ कहाँ तुम जा रहे कोई बाबा वाबा के यहाँ। पर वो मम्मी गई और उनको संस्कृत का बोलते, तभी उनकी सहेलियों ने चैलेंज दिया था। इतनी एग्जाम उस समय की एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड होती थी, कठिन होती थी संस्कृत की। तो बोले यदि अगर तुम इसमें सानप पास हो जाती, उसका मैके का नाम सानप, तो हम कहेंगे कि मेहर बाबा सचमुच में भगवान है। और वो फर्स्ट क्लास में वो उसमें पास हो गई थी। तो खैर पहले की मुझे बता नहीं सकती गारंटेडली। और ये जो आफ्टर मैरिज का भी है, वो ऐसा डिसाइड करके नहीं हुआ नीलम जी। ऐसे हालात मैंने खुद देखे हैं। वो नहीं जाती थी, कहीं भी मार्केट नहीं जाती थी, ना चक्की पिसाने जाती थी, ना सब्जी लेने जाती थी, ना कपड़े खरीदने जाती थी, कुछ भी नहीं। गहने की तो बात ही दूर, कहीं नहीं जाती थी। और ये ऐसा नहीं है कि डिसाइड करके ऐसा उन्होंने पैसों को हाथ नहीं लगाया, पर नहीं उन्होंने ये किया, कोई वैसा ही था। वो अब मैं नोटिस कर रही कि अरे ऐसा था, हाउ डिफिकल्ट इट इज, क्योंकि सब कुछ दादा देखते थे। और ये वो भी एकदम निर्लेप है, निर्लिप्त है इन चीजों से। और उनके बहुत मौके आए दादा को, मतलब गोवेर आंटी का लेटर एक बार आया कि बाबा के लिए अच्छा घाने का करड़ी का तेल, सफोला ऑयल बोलते हैं ना, वो मिलता है तो भेज दो। तो दादा ने वो स्पेशल बना के बोले मैं भेज रहा हूँ, टेस्ट करके एक नमूना, आपको पसंद आता है तो बोलो और भेजेंगे। तो नमूना उनको पसंद आया। तो तब से लेके बाबा जाने के बाद भी मेहराजाद में जितना भी एडिबल ऑयल होता था, कंज्यूम होता था, जरूरत लगती थी सब मंडली के खाने के लिए, वो पूरा तेल पाथरडी से जाता था। अरे वाह। या और घाने वाले को पता था कि ये मेहर बाबा के लिए जा रहे हैं, तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी पिताजी की कि एकदम प्योर चाहिए, अच्छे से बनाना, और घर में कोई उसको टेस्ट तक नहीं करेगा, बिना छुआ हुआ, झूठाना नहीं उसको। तो वो बाबा का मतलब भगवान के लिए तेल जाना है करके वो भी इतना ईमानदारी से, उसके भी क्या संबंध हो गए बाबा के पास में, इनडायरेक्टली हम बोल सकते। तो वो पूरा बाबा के लिए अलग सा घाना लगवा के वो तेल दादा बेचते थे। और जैसे पहला तेल पहुंच गया, वो उसका प्रोसीजर ऐसा होता था, वो पाथरडी से अहमदनगर वो जाएगा, आदि काका के पास पहले गया, वहां से मेहराजाद गया, मेहराजाद जाने के बाद फिर उनका लेटर आया, उन्होंने पूछा, या पहला दादा खुद लेके गए। तो गोहेर आंटी ने पूछा इसका पैसा बोलो। तो दादा ने बोला छे भगवान से पैसा लेना है तेल का? नहीं नहीं, ये मेरी तरफ से। तो बाबा के यहाँ का कानून आपको तो पता है, और उनकी वैसे ही हालत खस्ता थी। तो गोहेर आंटी ने बोला फिर लेके जाओ। फिर बाबा बोलते, बाबा ने कहा है कि पैसा जो भी है बताओ, और अगर पैसा नहीं लेते तो बाबा तेल नहीं लेते। फिर पिताजी को बोलना पड़ा, जो भी कॉस्ट था वो तो बाजार के कहीं कम ही था, क्योंकि वो ऐसा स्पेशली अरेंजमेंट उसके साथ किया था। और इसके बाद में फिर पाथरडी का जो ड्राइवर कंडक्टर, उनके साथ उनके कनेक्शन उन्होंने किए, वो बस में पहुंचाते थे अहमदनगर एसटी स्टैंड पर। वहां रंगोली काका का उस ऑफिस में थे, आपको पता होगा। फिर रंगोली काका के पास वो एडिबल ऑयल के डब्बे जाते थे, फिर उसको मेहराजाद में पहुंचाया जाता था। तो ये ईश्वर ने इतना सुंदर मौका उन दोनों को दिया है। वो पपई की कहानी तो आपको सबको पता ही होगी। Any other questions? किसी को और कुछ पूछना है? अच्छा, अभी मुझे एक वापस अनाउंसमेंट करनी है, एंड दैट इज अबाउट दिस मैगजीन। ये ग्लो मैगजीन अगर आप सबको दिखता है तो ये देख लीजिए। देखिए, ये जो मैगजीन है, मैं कोई उसकी प्रमोशन या मार्केटिंग के वैसे एंगल से नहीं कर रहा हूं। इसके पीछे बहुत सुंदर कहानी है। ये जो नौशीरवान नाला वाला जो पब्लिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके, बहुत जहमत करके, और बाबा के हुक्म के मुताबिक ये मैगजीन शुरू हुई थी। सो मुझे आप सभी लोगों को यही विनंती है कि जो लोग भी ये चीज पढ़ना चाहे, बाबा के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहे, इसमें नई नई चीजें बहुत जानने को मिलती है।
तो प्लीज ये मैगजीन को सब्सक्राइब कीजिए। उसका जो भी कोई डिटेल्स है वो अगर आप मुझे या जैनिस को पूछेंगे तो हम बहुत खुशी से आपको दे देंगे। और इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। देयर इज अ लेडी इन बैंगलोर हु डज ऑल दिस डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिकेशन, प्रिंटिंग, सब बहुत काम होता है। लेकिन the sole purpose is to spread Baba's words, and it is a wonderful job that they are doing. तो मैं आप लोगों को विनती करता हूं, जितने भी लोग सुनते हैं, अगर आप में से किसी को दिल में आया कि you want to subscribe for this magazine, please go ahead and do it, because today Perin Jasumani is not here. नहीं तो वो तो बड़ी खुशी से बोलती थी, because इस टाइम इसमें एरज जसावाला की बहुत सारी आर्टिकल्स लिखे हुए, एरज जसावाला की डायरी में से सब आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। सो दैट इज जस्ट अ फाइनल अनाउंसमेंट दैट आई वांटेड टू मेक। आज के प्रोग्राम में मेरी तरफ से थोड़ी कुछ गड़बड़ सरबड़ हो गई। पहले मैं लॉग इन नहीं हो सका, फिर साउंड नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। उसके उस वास्ते मैं सर्वप्रथम बाबा का सॉरी बोलना चाहता हूं, क्षमा मांगता हूं, और आप सभी से भी क्षमा चाहता हूं कि ये जो भी कुछ शॉर्टकमिंग्स मेरे तरफ से हुए उसके लिए बाबा मुझे माफ करे। अगले गुरुवार को हम वापस मिलेंगे। उसके पहले सिर्फ इतना ही कहना है, हवोवी दादा चांद जी लिखते हैं, रियली ब्यूटीफुल एंड मूविंग डियरेस्ट मेयर कृपा, सच वंडरफुल कनेक्शन। लव टू डियर पेरेंट्स एंड ऑल द फैमिली, ऐसा सब लिखा है उन्होंने। ये जो हमारा जो ये बाबा लवर्स का जो परिवार है, चाहे वो बॉम्बे सेंटर पे होवे या ऑनलाइन पे थ्रू आउट द वर्ल्ड होवे, देयर इज अ कॉमन थ्रेड जिसको बाबा कहते थे, लाइक आई विल कनेक्ट यू ऑल लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। वो एक धागे पे हम सब साथ में बंधे हुए हैं, और वो धागा का नाम है बाबा का प्रेम। सो बस आखिर तक मेरी यही बाबा से कृपा है कि आखिर तक हम उन्हीं के प्रेम में बने रहे, और जो भी कुछ हमारे जीवन में उथल पथल जो भी कुछ हुए, बाबा की दामन थामे रखे और उनके हिसाब से, उनके भरोसे पे अपनी जिंदगी बसर करने की कोशिश करें। If anybody wants to ask anything, please ask now, or else we can start with an Aarti. Archana ji, would you like to do the Aarti? Yes, Sam. Jai Baba. Jai Meher Baba, Archana. Thank you for a lovely evening. So soulful. Thank you. Both the speakers were very nice. I'm doing the Adi Sachetan Aarti. Is that all right, Sam? Of course, जो भी तुम्हारे दिल में आवे करो। अवतार मेहर बाबा की जय। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप में ये जलाऊं,
निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, तुम मुझको सरसाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु कहती तुम्हारी, बन जाए प्रभु कहती तुम्हारी, हे करुणा करे लीलाधारी, हे करुणा करे लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय। Beloved Avatar, Meher Baba ki jai. Beloved Avatar, Meher Baba ki jai. Thank you, Archana, for this beautiful rendition. Beautiful. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Does anyone want to say anything, ask anything before we switch off and go off the air? What a soulful आरती, बहुत सुंदर अर्चना। Yes, yes. Very correct. So, Madam Janice, हाँ जी, हाजिर हो। yes. Thank you, Baba, and you all. सभी It was को- an amazing session. आशा है आप सभी को प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया है तो पैसे वापस ले लेना।
Ji, shall I end the meeting? हाँ जी. Ji. See you all next week again. Stay safe, take care, and Baba Nigba. हंसते रहिए. जय बाबा. Stay happy. Yes. Thank you, everyone. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय.